students. Today we learn ideological issues. Ideology was an important factor during the Cold War era. Countries used to be classified as a socialist or communist on the one hand and capitalist or free democracies on the other. Soviet Union, East Europe and China were grouped as the socialist world, while West Europe and North America was the capitalist bloc. Ideology and the economic system were well connected. While ideology was a political feature, the economic system followed by the countries depended upon the ideology of that country. For example, the countries of Eastern Europe had followed the socialist ideology and had socialist economic system where the government or the republic sector was most important. Western European countries follow the capitalist ideology, hence their economic system was also capitalist in nature. In these countries, the private sector played an important role in the economy. During this period, countries like India were democratic socialist. This meant that they combined the ideologies of socialism and capitalism as per their requirement. Consequently, India had a mixed economic system. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आइडियोलॉजिकल इश्यूज। कोल्ड वॉर के दरमियान आइडियोलॉजी उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैक्टर था। मुल्कों को समाजवाद और कैपिटल या फिर लोकतंत्र से मुक्त होना ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया था। सोवियत रशिया, चाइना और पूर्वी यूरोपियन मुल्क यह समाजवादी थे और अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन मुल्क यह कैपिटलिस्ट यानी भांडवलशाही ऐसे ग्रुप बन गए थे। आइडियोलॉजी और इकोनॉमिकल सिस्टम इनका बहुत करीबी रिश्ता होता है। आइडियोलॉजी यह एक पॉलिटिकल फैक्टर होता है। हर एक मुल्क अपनी और अर्थव्यवस्था को आइडियोलॉजी के मुताबिक फ्रेम करता है। ऐसी इकोनॉमिकल सिस्टम में सरकारी और पब्लिक सेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है। वेस्ट यूरोप में प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दिया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान जैसा मुल्क समाजवादी लोकतंत्र ऐसी एक पहचान अपने देश की बनी हुई थी। इसलिए आज भी यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले बिजनेस है। इसी हमारे सिस्टम को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, टुडे in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. This is described as market economy. But all countries do not follow the same kind of market economic system. The nature of market economy is determined by the ideology of that country. Let us take some examples. The United States is considered a capitalist market economy because it combines the capitalist system of economy with market economics. Western European countries are described as welfare market economies because their political system is that of welfare state. China is described as having a socialist market economy. China is a socialist state, but its economic system changed in the 1990s and become a market economic system.
In India, we do not use the word market economics. We describe Indian system as economic liberalism. अगले पॉइंट में हम आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक ही ऐसी आइडियोलॉजी और एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई देता है, और वह है फ्री इकोनॉमिकल सिस्टम। सभी मुल्क इस व्यवस्था को नहीं अपनाते हैं। मार्केट इकोनॉमी उस रियासत की सोच के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम होने की वजह से अमेरिका की पहचान कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे जाना जाता है। चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम पर और पॉलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था के ऊपर समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। 1990 के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया हुआ दिखाई देता है। आज चाइना की पहचान समाजवादी मार्केट व्यवस्था से जाना जाता है। इसके साथ हमारी हिंदुस्तानी मार्केट सिस्टम को भी हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। हमारे मार्केट व्यवस्था का अगर आपको देखना है, समझना है, तो हम इसके लिए हमने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन यह वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे देश में ओपन मार्केट और ओपन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ये 1991 के बाद आया हुआ ये बदलाव है। और हर मुल्क की एक इकोनॉमिकल सिस्टम, उनकी मार्केट सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं कि ये उस मुल्क की आइडियोलॉजी के ऊपर निर्भर करती है। जिस प्रकार से अमेरिका की आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट से प्रभावित है, चाइना समाजवादी मार्केट व्यवस्था से प्रभावित है, और हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक कोल्ड वॉर के बाद किस तरह से दुनिया की सोच के ऊपर उस अपने मुल्क के विचारधारा से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले सिलेबस के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।